So finally, US has decided Mr. President or Madam President. So Mr. President has arrived and Donald Trump has won the US elections, the very prestigious elections which was going on since almost so many months, and eventually the verdict is out. So the final outcome is still to come, but based on trends, it is almost clear, ये clear हो चुका है that Mr. President, Mr. Trump has won the election. Now I just want to discuss about if you see the total number of votes that are needed. So in the US elections में 270 का number achieve करना है and 267 already reached. And if you see the state, these are the states जो अभी बचे हुए हैं. And now these states, Michigan, Wisconsin, all these states eventually यहाँ पर Trump lead कर रहे हैं. More than 50% votes यहाँ पर mostly states में, almost all states में he is leading. So it is almost clear that he is going to win the elections with a clear majority and verdict is almost clear. Now question comes that Mr. Trump has won the election and this election is an unprecedented election क्योंकि इस election में बहुत सारी claim किए गए. Now remember Mr. President, Mr. Trump is the second person in the history of USA जो दूसरी बार हारने के बाद फिर जीते हैं. So after winning then losing and then again you came back to power. Now this is unprecedented for the same reason. And interesting बात यह है कि maybe 10 years ago, 12 years ago, nobody had even thought that Mr. Trump is going to be the president. लोग हंसते थे उन पे. But the destiny and the verdict is out. The destiny has played and served him and the verdict is out. So already 270 जैसे ही क्रॉस करेंगे he is going to be declared the winner. But क्या रीजन है विन के? If we look at the reasons of why he is winning, the first is swing states. Now there are states which are decided. USA के अंदर दो पार्टीज हैं आपके डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिकन. Now there are states जहां पर ऑटोमेटिकली पहले से डिसाइड है कि इट इज अ रिपब्लिकन स्टेट और इट्स अ डेमोक्रेटिक स्टेट. बट देर आर सर्टन स्टेट जो स्विंग स्टेट होते हैं जहां पर बहुत क्लोज है. यू हैव फॉलोअर्स ऑफ बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज, बट जो स्विंग स्टेट है वो फाइनल वर्डिक्ट डिसाइड करते हैं. स्विंग स्टेट स्टार्टिंग से ही ट्रम्प को फेवर कर रहे हैं एंड द अर्ली ट्रेंड सपोर्टेड दैट स्विंग स्टेट उनको जाने वाले हैं. देन मिस्टर ट्रम्प हैज बीन अगेन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन, वेरी वोकल, वेरी ओपन अबाउट इलीगल इमिग्रेशन. और उनका मानना है कि इलीगल इमिग्रेशन इज अ बेन फॉर द कंट्री. एक मैक्सिको में वॉल भी बनाई थी अपने पीरियड में. So this illegal immigration has resonated with the common population, stating that yes, we don't want people from outside. Then जो इनकी foreign policy, it is pro USA. Now he talks about let's make America great again. Let's talk about trade of America. Let's talk about business of America. How do you bring jobs to America? The foreign policy should be pro USA. Everything is centered around USA. So उस approach में he has been lauded by people across the world, and that is also one of the factors. ऑल्सो लास्ट 4 ईयर में यूएसए के अंदर इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तो एक ग्रोथ आपकी कम हो गई थी. द फेड रेट्स वर हाई. ऑल दीज फैक्टर्स इंपैक्टेड एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ कोविड. कोविड में जो इनका प्लान था जिसमें इन्होंने एक रिवाइवल पैकेज दिया था, दैट बैकफायर्ड एंड सडनली इन्फ्लेशन वेंट अप एंड यूएस इकोनॉमी ऑलमोस्ट डोल्ड्रम में आ गई थी. थिंग्स वर नॉट एज एक्सपेक्टेड एंड इकोनॉमी के को रिवाइव करने का एक चैलेंज मेनली था विच मिस्टर बिडेन कुड नॉट प्रूव हिमसेल्फ. ऑल्सो देयर वाज अ फीलिंग अमंग मिस्टर बिडेन दैट मिस्टर बिडेन इज अ वेरी नॉट सो एक्टिव प्रेसिडेंट अनलाइक द रेगुलर वंस. एंड ऑटोमेटिकली इस पूरे फेज के अंदर मिस्टर ट्रम्प गॉट द बेनिफिट ऑफ दैट. मिस्टर बिडेन हैड टू मूव आउट एंड कमला हैरिस केम इनटू पिक्चर. और कमला हैरिस शुरू में उनको लगा एक लीड है एंड द मीडिया ऑल्सो वाज सपोर्टिंग हर, बट इवेंचुअली the common population will decide who will be what will be the outcome. Now coming to presidential election, election की बात करते हैं तो कैसे election होता है. Now US के अंदर 270 electoral college में 538 votes होते हैं and anybody who wins 270 elections will go to win it. So जो electoral college के लोग होते हैं ये voting करते हैं and these electoral college जो है that is decided by the common people. Now they will vote और the electoral college vary from population to state to state. और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रल कॉलेज में मेंबर्स हैं वो यू हैव स्टेट्स लाइक टेक्सास जहाँ 40 हैं, यू हैव स्टेट्स लाइक कैलिफोर्निया 54. तो ये इलेक्ट्रल कॉलेज जो है के वोटर्स के बेसिस पे आपको नंबर्स मिलते हैं एंड दे डिसाइड द वोटर्स. नाउ विनर टेक ऑल अप्रोच. मान लीजिए एक स्टेट में आपको इलेक्ट्रल कॉलेज के 30 वोट्स मिल रहे हैं और दूसरे को 10 मिल रहे हैं, तो बट आपको 40 मिल जाएगा बिकॉज विनर टेक्स ऑल, यानी पूरा वोट आपको चला जाएगा. And there are swing states like Arizona, Georgia, Pennsylvania, and all these states are deciding the outcome. क्योंकि शुरू से ही एक early trend Mr. Trump had taken. So Miss
मिसेस कमला हैरिस कुड नॉट ओवरकम दैट फेज और वो वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाई. वोटर्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉलेज नॉट पॉपुलर वोट, यानी अगर आपको परसेंटेज वोट ज्यादा मिलता है दैट विल आल्सो नॉट काउंट. इफ यू हैव सिक्योर्ड वोट्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज तो आप जो है जीतेंगे. तो इलेक्टोरल कॉलेज का जो वर्डिक्ट है दैट इज ऑलमोस्ट 267 पहुंच गया है. 270 इज गोइंग टू क्रॉस एनी मोमेंट इन द कमिंग टाइम. दैट मींस ऑलमोस्ट डिसाइडेड, ऑलमोस्ट फाइनल, रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड और ये है ना जीते जा चुके हैं. Across the world, people have started congratulating on the X पर जो है our Prime Minister Modi has also had congratulated, and everybody across the world congratulations has started coming in. Now coming to India के लिए क्या है, because as a nation, as a country, we need to know that how India is is going to be under the regime. Now naturally एक general feeling ये है that whosoever becomes president, it will be good for India. But if I say our leader Mr. Modi has a very strong personal relations with Mr. Trump. So howdy Modi, namaste Trump, इस तरह के events हुए थे if you remember it 2019. And our Prime Minister Mr. Modi will remain for next 5 years, and he will also remain for next 4 years. So personal relations has been very good, and Mr. Trump has been he has been a very he has been telling Mr. Modi is a fantastic person, I want to collaborate with him and all. So Mr. Trump seeks a strong diplomatic ties with India. Now, if you see the global dynamics, geopolitics, China is one country जहां से challenge है. So that is where diplomatic ties are pro China. India has already वो क्वाड हो गया या फिर हमारे जो भी कन्वर्जेंस एरियाज है वहां हम यूएस के साथ कोलैबोरेट करते हैं. चाइना इज सीन अ सिक्योरिटी चैलेंज फॉर बोथ इंडिया एंड यूएसए, एंड देयर बाई यूएसए हैज अ स्ट्रेटजी कॉल्ड चाइना प्लस वन. एक चाइना प्लस वन की स्ट्रेटजी है वेयर दे वांट टू मेक श्योर दैट इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस स्टार्ट मूविंग फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्री. एंड इंडिया इज सीन एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर. एक इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तरह देखा जाता है. देन टू परस्यू प्रो यूएस पॉलिसीज, तो प्रो यूएस पॉलिसीज फॉलो करेंगे. इफ इन दोज प्रो यूएस पॉलिसीज में देखने को मिलेगा कि भाई हो सकता है इंडिया के अगेंस्ट हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट टैरिफ, मिस्टर ट्रम्प हैज ऑल्सो ऑलवेज सेड दैट इंडिया इज अ टैरिफ अब्यूजर. और अभी हमारा ट्रेड सरप्लस है. एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इज मोर देन द इम्पोर्ट ऑफ हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है एंड इम्पोर्ट्स आर लेस. और ऑलमोस्ट 2023-24 में लगभग 43 आपका इंपोर्ट था एंड आपका 77 बिलियन आपका एक्सपोर्ट था. तो देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ अराउंड यू कैन से मोर देन $30 बिलियन. तो यहां पर मिस्टर ट्रम्प माइट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज ही बिलीव्स दैट ये टैरिफ जो है जो डेवलप कंट्री या बाकी कंट्रीज यूएसए के ऊपर लगाते हैं दैट इज नॉट गुड फॉर देयर एक्सपोर्ट्स. तो नेचुरली इंपोर्ट्स को बढ़ना चाहें, ही वुड वांट दैट एक्सपोर्ट्स ऑफ यूएसए शुड इंक्रीज, जो हमारे लिए इंपोर्ट होगा. तो वहां पर एक चैलेंज रहेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम बिकॉज ही हैज ऑलवेज क्वेश्चन. वो हार्ले डेविडसन हो गया या बहुत सारे एरियाज में ट्रेड रेसिप्रोकल लेवल पर एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था बिफोर द कोविड बिटवीन यूएसए एंड चाइना. और इंडिया में भी टैरिफ का रिटेलिएशन हुआ था, यानी हमने टैरिफ बढ़ाया तो उन्होंने भी बढ़ाया, पहले उन्होंने बढ़ाया फिर हमने बढ़ाया, तो ये सब चलता रहा. ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट मिस्टर ट्रम्प, ही इज द सेकंड प्रेसिडेंट टू विन नॉन कॉन्सिक्यूटिव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. एंड उससे पहले थे ग्रोवर क्लीवलैंड, दिस वाज इन 1880s की बात हो रही है. तो नेचुरली मिस्टर ट्रम्प विल बी गुड फॉर इंडिया. वेल एनी प्रेसिडेंट कम्स विल बी गुड फॉर इंडिया. हाँ, लेकिन मिस्टर ट्रम्प इज वेरी क्लियर ऑन सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल ही इज अगेंस्ट यूक्रेन यूक्रेन वॉर. यूक्रेन जो रशिया वॉर है उसके अगेंस्ट है. ही डज नॉट वांट टू सपोर्ट द वॉर एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन इकॉनमी. ही इज क्लियर ऑन दोज एरियाज. सो नेचुरली वी माइट सी that this war might soften. एक थोड़ा relatively peaceful world आ सकता है. We don't know, it's too early to say, but that is the prediction. So that way we can certainly say कि Mr. Trump winning is a clear sign that next 4 years is going to be different. Unlike जो current policies है उसमें कुछ tweaking होगा. Also Mr. Trump is pro business, pro tax, तो वो tax कम करेंगे, pro business को promote करेंगे USA के अंदर. But he is pro USA, which means any policy which is impacting USA negatively उसको वो क्वेश्चन करेंगे. एंड हियर इंडिया एंड यूएस माइट बी एक छोटा सा पॉइंट है जहां पे डाइवर्जेंस हो सकता है. तो दैट इज वन एरिया आई फील वुड बी अ चैलेंजिंग फेज. सो विल हैव टू सी हाउ थिंग्स गो इन द कमिंग डेज. सो फार द वर्डिक्ट इज आउट, आउटकम इज क्लियर, मिस्टर ट्रम्प इज द विनर. नाउ द स्टूडेंट्स हु वांट टू, यू शुड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. और ये हमारे रेगुलर कोर्सेज हैं, इनको आप ज्वाइन करिए. एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, एनसीईआरटी फाउंडेशनल कोर्स 1 year, 2 year, 3 year. तो ये आप करिए. लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, and be ready for your preparation because we are going to put real effort in long run. Okay, keep up the good work. Thank you, take care, God bless you.